So hello guys, today I am here to tell you about Coulomb's law. This is the chapter which I have taken from physics named electrostatics. So in this video I am going to tell you about the Coulomb's law in general form and in Coulomb's law in vector form. Okay, so let's start the topic. So firstly we will write what is Coulomb's law. Okay, so when two charges were separated by some distance, okay, so take the first charge as a Q1 and second charge as Q2, okay, and let the distance between them is to be R, okay. So when two charges were separated by some distance, then they will interact. Interact means either they will attract or repel, and as we know that the charges were attract when they are opposite in nature, okay, as we know that opposite charges attract each other and similar charges repel each other, means so here both phenomena were possible, okay. So then they will interact with each other, okay, with a magnitude of force. So जो force होगी जिस magnitude की, वो जिस force से ये एक दूसरे को interact करेंगे, वो force किसके directly proportional होगी? इन दोनों charges के product के directly proportional होगी, okay. So the force is directly proportional to the product of these two charges, and after that what I have written, and inversely proportional to the square of distance between them.
So here we have taken the distance between them as r. So what we write? The force is inversely proportional to the square of distance between them. Okay. So F is directly proportional to 1 by r square. Take it as a first equation and take as the second equation. Okay. So we can write first and second what we can write F is directly proportional to the product of two charges Q1 and Q2 and inversely proportional to the square of distance between them. Okay. So for removing this proportionality we put a constant K. Okay. So what will it become? F is equal to K Q1 Q2 upon R square. Okay. Here K is a constant. Okay. So let's talk about K. K. What is K here? The constant. जिसको पॉपुलरली हम किस नाम से जानते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं. इस नाम से डाइलेक्ट्रिक. हम पर्टिकुलरली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं. E की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम. ओके. सो ये K की वैल्यू होती है. ओके. और K को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं. मतलब K को लिखते ही उस तरीके से हैं K इज इक्वल टू 1/4πε0. सो चलिए यहाँ तक आप लिख लीजिए. तो इसके बाद हम इरेज करेंगे फिर आगे. So hope you guys written these all things. So I need some space. So K is 1/4πε0. इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट. और इसे अगर हम देखें फिजिक्स के टर्म्स में तो इसे बोला जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस कह ले चाहे वैक्यूम कह ले, दोनों बातें की. परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो आइए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं. ओके. सो E is equals to 1/4πε0. Okay. So what we have written the value of K 9 × 10⁻⁹ Newton meter square per coulomb square. So put this value here 9 × 10⁻⁹ as unit of second. So 1/4 and pi के प्लेस पे 3.14 रख देंगे हम लोग और E0 ऐसे रख देंगे. फिर E0 इधर चला आएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा. Guys, when you calculate the value of E0, it will come out to be 8.85 into 10⁻⁻12 farad meter. Okay. So this is the value of E0, means the permittivity of free space in vacuum. So when these two charges are placed in vacuum, when these Q1 and Q2 charges were placed in vacuum, then you will use E0 is equal to this, because this is the permittivity of free space. Okay. And note that this K depends upon medium. What? Depends upon
गाइस दिस के कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन मेटीरियल। ओके, सो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, so hope you all guys you have written all these things. Okay, so let's come back to the second topic, which is Coulomb's law in vector form. So Coulomb's law in vector form. Okay, suppose two charges are there. One is q1 and the other one is q2. Take these two charges as a positive charge. Okay, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। Okay? और इनके बीच में हम जो डिस्टेंस है उसे r मान लेते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसे r मान लेते हैं। Suppose this is r. Okay, so as we know like charges repel each other. तो ये जो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपल करेंगे, दूर भागेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। जो q2 है वो इस डायरेक्शन में q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, और जिस फोर्स को हम किस नाम से लिखेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। ओके, और फिर एज वेल एकदम इसका वाइस वर्सा, ये जो q1 चार्ज है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जो कि होगा, जिसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके आगे यूनिट वेक्टर लेंगे। ओके, सो यूनिट वेक्टर आइए लेते हैं। एक यूनिट वेक्टर हम q2 से q1 की तरफ लेंगे। ठीक है, सो q2 से q1 की तरफ एक यूनिट वेक्टर लेंगे। ओके, और जो अनदर हमारा यूनिट वेक्टर होगा उसको किधर से किधर लेंगे, उसको q1 से q2 की तरफ लेंगे, q1 से q2 की तरफ लेंगे इस डायरेक्शन में, और ये हमारा सेकेंड फर्स्ट चार्ज इस डायरेक्शन में। ओके, सो ये वाला हम किधर लेंगे, फ्रॉम q1 टू q2, q1 टू q2। ओके, सो ये किस डायरेक्शन में होगा बच्चों, ये इस डायरेक्शन में होगा, और ये किस डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा फ्रेंड्स। ओके, आइए अब लिखते हैं हम जनरल फॉर्म के जरिए, इसको हम लिख सकते हैं F force on first charge due to second charge can be written as K Q1 Q2 by R square, और इस यूनिट वेक्टर को लेंगे क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन है, फ्रॉम सेकंड चार्ज टू फर्स्ट चार्ज इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, फ्रॉम बाई Q2। ओके, बाई Q2 लग रही है इस डायरेक्शन में Q1 के ऊपर। तो आइए इस वेक्टर को यहाँ पे लिख लेते हैं। और इसके बाद हम फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट को लिखेंगे, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट इक्वल टू K बाई R स्क्वायर, और एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे। ठीक है, हमने लिया ही था किस डायरेक्शन में, फ्रॉम फर्स्ट चार्ज टू सेकंड इन दिस डायरेक्शन। ओके, आइए इसे भी लिख लेते हैं। सो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे इक्वेशन आ गए। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, आइए हम देखते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो r12 है ये फर्स्ट टू सेकंड जा रहा है, ये हमने यूनिट वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में लिया है, इस डायरेक्शन में लिया इसका मतलब, और इसे इस डायरेक्शन में लिया, और जो अदर यूनिट वेक्टर है हमारा फ्रॉम सेकंड चार्ज टू फर्स्ट यानी इस डायरेक्शन में लिया है हमने। ठीक है, फ्रॉम सेकंड चार्ज टू फर्स्ट चार्ज, तो इस डायरेक्शन देख रहे होंगे आप, दोनों चार्जेस जो हैं सॉरी जो दोनों यूनिट वेक्टर हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो हम क्या ले सकते हैं, दोनों वेक्टर को हमें अपोजिट डायरेक्शन में लिया है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि ये जो है हाँ माइनस का r12 मीन्स जो हमारे यूनिट वेक्टर होगा फ्रॉम सेकंड फर्स्ट जो यूनिट वेक्टर है उसको हम नेगेटिव मान के, उसको पॉजिटिव मान के हम
R12 को क्या लिख दिया, नेगेटिव रेस्पेक्ट में, नेगेटिव के रेस्पेक्ट में लिख दिए, ठीक है। अब जैसे कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट उठाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू 2 को A(Q1Q2) बाई R, और जो ये R21 वेक्टर है, R21 यूनिट वेक्टर है, इसके प्लेस पे हम R12 यूनिट वेक्टर रखेंगे। सो ये माइनस का R12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस A(Q1Q2) बाई R, ओके। और ये जो माइनस का साइन है उसे मैंने आगे लिख दिया है, और ये यूनिट वेक्टर फ्रॉम फर्स्ट चार्ज टू सेकेंड चार्ज लिख देंगे, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इक्वेशन सेकेंड क्या है, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट इसके इक्वल है A(Q1Q2)/R², यूनिट वेक्टर R12, यानी ये जो इतनी वैल्यू है ये फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट की, ठीक है। इसे हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, यहाँ पे अभी कुछ इक्वेशन नंबर सेकेंड बना है। सो अब हम क्या लिखेंगे कि आगे कर लेते हैं, दैट स्पेस है। सो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू 2 विच नेगेटिव ऑफ, इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड F12 इज इक्वल टू, इस पूरे पार्ट को हम क्या लिख देंगे, ये पूरे पार्ट को हम F2 में लिख देंगे, ओके। फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। तो यही गाइस हमारा यूनिट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बोलता है कि जो फोर्सेज होते हैं बिटवीन टू चार्जेस, आइदर दे आर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, ओके। जो फोर्सेज होते हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। यहाँ पे जो नेगेटिव का साइन है वो अपोजिट इन डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है तो एक नेगेटिव डायरेक्शन है। बट गाइस एक बात जरूर याद रखिएगा, ये दोनों जो है मैग्नीट्यूड में आपस में रिसाइड कर देते हैं। सो हेंस opposite in direction. So जो टू फोर्सेज हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड और फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, वर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा लेकिन उनका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसा यहाँ पर नेगेटिव का सिंबल कर रहा हूँ, ठीक है। दिखा रही है कि जो दोनों फोर्सेज हैं वो अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। अब उसके बाद कई लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, जो मतलब यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया तो ये फेनोमेना हुई, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट था तो नेगेटिव साइन लग गया और मैग्नीट्यूड उनका इक्वल था। लेकिन अगर एक पॉजिटिव ले लेते हैं और एक नेगेटिव ले लेते हैं, उस केस में क्या होगा, उस केस में भी गाइस सेम थिंग होगी। ये पॉजिटिवली चार्ज एक ले लेते हैं, एक नेगेटिवली चार्ज ले लेते हैं, ओके। तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी जो फोर्सेज ऑफ, यहाँ पे बस क्या होगा, बस यहाँ पे जो दोनों चार्जेस हैं वो अनलाइक चार्जेस हैं तो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होने के कारण एक इधर जाएगा और एक इधर की तरफ भागेगा, दोनों एक दूसरे की तरफ भागेंगे, एक दूसरे की टुवर्ड्स भागेंगे, ओके, एक दूसरे की टुवर्ड्स भागेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आप देखेंगे कि डायरेक्शन अपोजिट ही है, ये किधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट सिंपल सी है। तो यहाँ पे भी इस केस में भी क्या होगा, जो केस होगा हमारा सेम होगा कि डायरेक्शन अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड इज नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। यहाँ पे भी ये दोनों फोर्सेस आपस में अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे और जो उनका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो भी सिमिलर होगा, सेम होगा, ओके, सॉरी सेम होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।